Swaminarayan Institute of Technology, Science and Humanities Department, and our subject is English. The subject code is 3110002. It is our subject code. So let's start. Unit 3, Identifying Common Errors in Writing. This is the title of the Unit 3, Identifying Common Errors in Writing. Writing कोई भी हो, टेक्निकल राइटिंग हो, ऐसे राइटिंग हो, रिज्यूमे राइटिंग हो, कवर लेटर हो, लेटर्स हो, कंप्लेन लेटर, एडजस्टमेंट लेटर, कवर लेटर, इंक्वायरी ऑर्डर, कोई भी हो, लेकिन we must be able to find out the errors in writing. So these are the topics that we cover in Unit 3. So number 1 is tenses. Number 2, subject verb agreement, noun pronoun agreement. After that, articles, prepositions, modal auxiliaries, and redundancies. It is a new topic for you, redundancies. So total है हमारे टॉपिक्स 7 टॉपिक्स इन आइडेंटिफाइंग कॉमन एरर्स इन राइटिंग. सो लेट्स स्टार्ट identifying common errors in writing. So look at here, dear all. Tenses. Simple present tense. Simple present tense. What is the usage of simple present tense? To express habitual manners of present, starting of a fact, general truth, and we can say state and condition. ये है usage of simple present tense. Next, what is the structure of simple present tense? So subject plus V1 यानी main verb, और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब S और ES, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. नेक्स्ट, टाइम एग्जाम्पल्स. Time expresses usually, every day, often, sometimes, rarely, always. These are the words which we are going to use in simple present tense. So look at here, this is the example. I drink a cup of Irish coffee every day. I do not drink a cup of Irish coffee every day. Do I drink a cup of Irish coffee every day? So जब क्वेश्चंस बनाना हो, आपने स्टार्टिंग किया आई डू, बट आप इफ़ यू वांट टू मेक अ सेंटेंस फॉर योर ओन सेल्फ, सो डू आई, ऐसा करके हम वी आर गोइंग टू मेक अ क्वेश्चन मार्क लाइक दैट. सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको ईजी बता दूँ. आई ऑलवेज walk in the every morning and the sun rises in the east. ऐसे भी एग्जाम्पल्स है जो एवरीडे होते ही है. नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सो यूसेज क्या है? टू एक्सप्रेस द एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ इन द प्रेजेंट. प्रेजेंट टेंस में आपको द काइंड्स ऑफ टेम्पररी सिचुएशंस, even if the action is not happening at the moment also. So Riya is sleeping right now, तो present tense वो हुआ. So look at here, sentence structures. Subject plus am is are. am is are में am is are, I am, he she it हो तो is, and we are you are they are, plus V1 plus ing. present continuous tense में जो एक्शन है वो कंटिन्यू होनी ही चाहिए. एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स. दिस इज द पैटर्न सब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. नेक्स्ट, टाइम एक्सप्रेशंस. ये क्या है? देखिए आप, राइट नाउ रीना इज स्लीपिंग, तो रीना अभी सो रही है. राइट नाउ आई एम वॉकिंग, but action must be continue at the moment of speaking. Next, at the moment, at the present time, look, listen,
ये है वर्ड्स विच शोज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. यू आर रीडिंग दिस मटेरियल नाउ. नाउ यानी आप अभी पढ़ रहे हो. नेक्स्ट, यू आर नॉट रीडिंग दिस मटेरियल नाउ. आप अभी ये मटेरियल पढ़ ही नहीं रहे हो. नेक्स्ट, नाउ मेकिंग अ क्वेश्चन मार्क. आर यू रीडिंग दिस मटेरियल राइट नाउ. ये आपका क्वेश्चन है. नो, आई एम स्लीपिंग, लाइक दैट. नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट. टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट हैज़ जस्ट एंडेड इन द प्रेजेंट. लेकिन उसका टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, जस्ट अभी ख़त्म हुआ है. लेक्चर जस्ट ख़त्म हुआ हो और आपके पापा का कॉल आए, लेकिन यू जस्ट से के प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इट जस्ट हैज़ completed right now but the action is continue. So subject plus have has. next plus V3. V3 यानी go went gone. gone हुआ वो V3 हुआ. break broke broken तो V3 वो हुआ. eat at eaten तो ये V3 के एग्जाम्पल मैंने आपको शेयर किए. So subject plus have has plus V3 plus object and other words. इसके टाइम एक्सप्रेशंस क्या हैं तो सिंपली, जस्ट, येट, एवर, नेवर, सो फार, फॉर, सिंस, लेटली. ये है वर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ज़्यादातर यूज़ होते हैं. लुक एट हियर द एग्जांपल्स. ही हैज़ कंप्लीटेड हीज असाइनमेंट. मीन्स के जस्ट अभी उसका असाइनमेंट ख़त्म हुआ है. नेक्स्ट, he has not completed his assignment. Has he completed his assignment? So has plus completed और या have plus completed ये आता है V3 में. नेक्स्ट, present perfect continuous. To express the action which has lasted for some time by now and it's still going on. प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ये टेंस ऐसा है, इट विल स्टार्ट इन द पास्ट लेकिन इट स्टिल कंटिन्यू. सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन. बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही आता है. सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स. सो लुक एट हियर. अगर हम कहें कि मैं अहमदाबाद में बरसों से रह रही हूँ, सो ये टेंस आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. आई एम लिविंग इन अहमदाबाद सिंस 2008, लाइक दैट. सो दीज आर द वर्ड्स. फॉर एन आवर, फॉर अ वीक, फॉर 5 years, ऑल डे, सिंस. These are the examples. She has been working as a teacher since the graduated from college. She has not been working as a teacher since she graduated from the college. So एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं और एक नेगेटिव है. नेक्स्ट है वो क्वेश्चन मार्क है. हैड शी कम, हैड शी बीन वर्किंग सिंस शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज. सो कॉलेज में से ग्रेजुएशन करके उसको वो जॉब में स्टार्ट हुई. नेक्स्ट, सिंपल पास्ट टेंस. टू एक्सप्रेस द एक्शन विच हैपन्ड. सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल मैं आपको दे. गो का वेंट होता है, ईट का ATE एट होता है, ब्रिक तो ब्रोक. ये है एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. द एक्शन इज कम्प्लीटली फिनिश्ड. टू एक्सप्रेस द एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट. सब्जेक्ट प्लस V2. V1 यानी मेन वर्ब, V2 यानी पास्ट सिंपल पास्ट टेंस और V3 यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं. V3 यानी उसका लास्ट फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, लाइक दैट. नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स. यस्टरडे, सिंपल पास्ट टेंस में यस्टरडे यूज़ होगा. लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इन 1995, इन 2009, 2 hours ago, 4 hours ago. ये है सिंपल पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स. वी विजिटेड दुबई इन 2009. हमने दुबई की मुलाकात की थी. वी विजिटेड इन 2009. वी डिड नॉट विजिट दुबई इन 2009. जब डिड यूज़ होता है तो V1
में देयर इज़ नो बी चेंज्ड. विजिट का विजिटेड नहीं होगा बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन डिड. वी डिड नॉट विजिट दुबई इन 2009. डिड वी विजिट दुबई इन 2009? सो इट इज़ अ सिंपल पास्ट टेंस में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा गया कि आप गए थे. नेक्स्ट है टेंसेस में पास्ट कंटिन्यूअस. सो टू एक्सप्रेस द एक्शन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट इन अदर वर्ड्स. टाइम एक्सप्रेशंस है वाइल, व्हेन, एट 5 o'clock, यस्टरडे. पास्ट कंटिन्यूअस में यानी यस्टरडे में ये इस टाइम पे टीवी में सीरियल देख रही थी, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हुआ कि ये कर रहे थे आप, तब उसके एक्शन चालू थे. व्हेन ही रीच्ड आई वॉज रीडिंग अ बुक. जब वो आया तब मैं बुक रीड कर रही थी. व्हेन ही रीच्ड आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक. वॉज आई रीडिंग अ बुक व्हेन ही रीच्ड? सो फर्स्ट है मैंने जैसे आई हैव रिपीटेड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन समझा रहे हैं. नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट. टू एक्सप्रेस द एक्शन विच happened before another past action or before some point of time in the past. तो यहाँ पर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3. यहाँ पर कंपलसरी हेड आएगा ही. पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेड आ रहा है HAD हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. So look at here, by the time, ये है टाइम एक्सप्रेशन. बिफोर, आफ्टर, by 1998, बाई यस्टरडे, बाय लास्ट संडे. क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात है तो ऐसे ही होंगे वर्ड्स आपके. नाउ लुक एट द सेंटेंसेस. ऑल द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट द एक्शन बाय लास्ट वीक. ऑल द स्टूडेंट्स had not left the school by last week. So had plus V3. Had plus V3 तो left. Next, had all the students left the school by last week? ये क्वेश्चन मार्क्स में क्वेश्चन मार्क आए तब हेड आगे जाता है, आगे आ जाता है, डीड आगे आ जाता है, डू आगे आ जाता है. नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. To express the action which lasted for some time before another past action or before some point of time in the past. पास्ट में कोई टाइम पे ये एक्शन थोड़े मोमेंट पे चालू थी, ये दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ किया जाता है. सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING सब्जेक्ट इन अदर वर्ड्स. हैड बीन प्लस ING V1. सो बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर, बाय यस्टरडे, बाय 2005, फॉर 2 hours. मीन्स कि अगर आप बोल रहे हो कि बिफोर 2 years मैं 2 hours के लिए वॉकिंग कर रही थी, तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा. सो फॉर 2 hours, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये है टाइम एक्सप्रेशंस. सो लुक एट हियर द एग्जांपल्स ऑफ टाइम एक्शन. बाय 2009 दे हैड बीन लिविंग देयर फॉर 20 years. बट दे हैड बीन लिविंग, पर अभी तो वो अहमदाबाद में ही रह रहे हैं. बट अभी ये बात चल रही है राइट नाउ दे आर लिविंग इन अहमदाबाद, बट इन बाय 2009 में वो द्वारका रह रहे थे. एग्जाम्पल मैंने इस तरह से आपको दिया. ओके, बाय 2009 दे हैड नॉट बीन लिविंग देयर फॉर 20 years. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया कि नहीं, वो इतना टाइम यहाँ पर नहीं रह रहे थे. नेक्स्ट, हैड दे बीन लिविंग देयर फॉर 20 years बाय 2009. सो क्या वो रह रहे थे 2009 में यहाँ पर. बट राइट नाउ, अगर राइट नाउ
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये पास्ट की बात है, 2 आवर्स की, 2 इयर्स की, लेकिन प्रेजेंट में वो मेन है, प्रेजेंट. नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर. टू एक्सप्रेस द एक्शन विच विल हैपन इन द फ्यूचर, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, सब्जेक्ट प्लस शैल विल plus v1 plus object plus other words. So here look at here, tomorrow, in a few days, next week, in 2025, in the future. I shall participate in next dance show. नेक्स्ट डांस शो में आई शैल पार्टिसिपेट. डियर ऑल, आई के साथ हमेशा शैल यूज़ होता है. आई शैल नॉट पार्टिसिपेट इन next dance show. Shall I participate in next dance show? So ये है simple future tense. Future continuous. To express the action which will be going on at some point of time in future. Future में कोई टाइम पर ये एक्शन कंटिन्यू हो गई, ये आपका अजम्पशंस है, प्रिडिक्शन है. तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस v1 प्लस ing ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स. यहाँ पर देखिए आप, एट 3 टुमारो, एट दिस टाइम, नेक्स्ट ईयर. आप ये समय पे बोल रहे हो, नेक्स्ट ईयर का अजम्पशन कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर में मैं ये कर रहा हूँगा. सो ये अजम्पशन है आपका. एंड when, so he will be sleeping at 2 o'clock tomorrow. so आप assumption करके वो कल 2 घंटे सोएगा. next, he will be not sleeping at tomorrow 2 o'clock. next, will he be sleeping at 2 o'clock tomorrow? so in future tense में भी you are making a question by shall or will. Next, future perfect tense. To express the action which will happen before another future action or before some point of time in the future. Look at here, subject shall will have plus v3. फ्यूचर परफेक्ट में आप अजम्पशन कर रहे हो कि मैंने जो टास्क लिया है वो कंप्लीट कर दिया होगा. ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो shall will plus have plus with plus object and other words. so by the time, by 2015, by tomorrow or before. so they will have left the city by next year. next year में वो लोगों ने सिटी ये छोड़ दी होगी. they will not have left the city by next year. will they have left the city by next year? so हर एक क्वेश्चंस में आप देख रहे हो, हर एक टेंस में कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है एंड क्वेश्चन मार्क्स में भी पूछे गए हैं. सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि कौन सा टेंस आपको पूछा गया है ब्रैकेट्स में. अगर आपको ऑप्शंस दे रहे हो, सो यू मस्ट हैव टू रीड द सेंटेंस 2 times. ओके डियर ऑल, सो लुक एट हियर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. to express the action which will last for some time before another future action. sentence structure. subject plus shall will plus have plus been plus v1 ing object. हर एक परफेक्ट टेंस में बीन कंपलसरी आता है. 12 टेंसेस हैं हमारे, उसमें हर एक में प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में बीइंग कंपलसरी आता है. सो कीप इन माइंड, टाइम एक्सप्रेशन से बाय द टाइम, बाय 2030, बिफोर for 2 hours. Next, she will have been doing job there by next month. will have been doing, कर रही होगी, ये आपका assumption है, अभी कर रही ही नहीं है. she will not have been doing job there by next month. will she have been doing job there by next month? so ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है वो जस्ट अजम्पशंस है, बट
ये इट्स नॉट श्योरिटी और अजम्पशंस और प्रिडिक्शन है. आप सोच रहे हो लेकिन वो हो नहीं रहा है. सो दिस इज़ अ सेल्फ प्रैक्टिसेस डियर ऑल. एंड यहाँ पर हर एक में आपको ब्रैकेट्स में ऑप्शंस दिए गए हैं. सो यू मस्ट हैव टू फिल अप दिस answers and shared me in Google Classroom by writing your uh, name, enrollment number and branch. आपको ये सेल्फ प्रैक्टिस में पेज नंबर वाइज आपको लिखना है 3.3. जैसे कि नाम है नेहा, फोर्थ कंप्यूटर, इस तरह से, राइट. सो आई गो अहेड. दिस इज़ ऑल द 50 ब्लैंक्स हैं एंड हर एक 50 ब्लैंक्स में यू मस्ट हैव ऑप्शंस. सो रीड इट द lines 2 times and submit me in Google Classroom. I will share you the message also. Subject verb agreement. Subject verb agreement. An agreement of a verb with a subject. Agreement of a verb with a subject is known as subject verb agreement. This is the definition of subject verb agreement, dear all. So please keep in mind, an agreement of a verb with a subject is known as subject verb agreement. In this sense, the subject and verb must agree with each other. सब्जेक्ट एंड वर्ब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जॉइंट होने ही चाहिए. सो इन दिस सेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री विथ ईच अदर इन नंबर्स. हियर आर some important points to remember. Number 1, in the simple present tense, the verb with third person singular ends with s or es, but there will be no s or es in third person plural. थर्ड पर्सन प्लूरल में नहीं आएगा. द डॉग बार्क्स, पर डॉग सिंगुलर है, डॉग्स नहीं है. अगर डॉग्स हो तो बार्क रहेगा, राइट. सो इट्स अ सिंपल singular dog, not more than. Next, the dogs bark. ये सही है because the dogs bark. So there are many dogs. My friend drinks coffee. My friend यानी a single person drinks. थर्ड पर्सन सिंगुलर में से हमें एस और ई एस वर्ब के पीछे लगाना ही है. सो माई फ्रेंड ड्रिंक्स tea. My friends drink tea because you are not a single friend, you have many friends. उसके लिए आपका वर्ब है वो as it is V1 आएगा. There are some expectations to this are he is, तो they are, he does, they do. He does because he के साथ हम he she it के साथ हमेशा does आएगा ही. He goes, तो they go. Next, it flies. Number 2, when the subject in one form with plural noun, one of the teachers, one of the employees, the singular verb is placed to agree with one, because you are talking about one person only, not many. There is mostly an inducement to make it agree with the plural noun. This immediately precedes also, but this is incorrect. Look at here, dear all. One of my students, अब ये देखिए, one of my students lives next door to my house. यहाँ पर live, not live, यहाँ पर नॉट लीव. वन ऑफ माई स्टूडेंट्स नॉट लीव आएगा. नेक्स्ट, वन ऑफ माई कजिन्स हैज़. कजिन्स है तो हैज़ कहाँ से आएगा, बिकॉज इट्स अ प्लूरल. सो कजिन्स हो तो हैव आएगा, नहीं कि हैज़. सो कीप इन माइंड कि वन ऑफ माई स्टूडेंट्स है तो वर्ब V1 ही आएगा, नहीं V2. सो प्लीज कीप इन माइंड, इफ अ क्लोज
separates the subject from the verb, it is needed to remember the actual subject verb and to make the verb agree with it. All the files which have been placed on that table by the window and reminding the piano which you gave my children works perfectly. When there is formal यानी कि सब्जेक्ट की बात है, द वर्ब अग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट दैट फॉलोज इट. देर इज एन एप्पल इन माई बैग, या एन एप्पल यानी सिंगल एप्पल आपकी बैग में है, नहीं कि एप्पल्स. देर आर 30 क्लासरूम्स इन अवर कॉलेज. सो क्लासरूम्स ये कितने हैं, 30 है. सो आपको क्लासरूम्स ही लिखना पड़ेगा. व्हेन अ सब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर नाउन्स इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. जैक एंड जिल हैव गॉन फॉर अ हॉलीडे. या जैक एंड जिल 2 पर्सन है, दैट्स व्हाई हैव. सिंगल हो तो हैज़. chickpeas, green, gran and sago are pulses. But when 2 or more nouns represent a compound name of one thing, then he compound is considered by as singular and takes a singular verb. Bread and butter is good for breakfast. क्योंकि ये साथ में खाते हैं. ब्रेड एंड बटर मोस्टली पीपल takes it in a snacks in the morning. So bread and butter हमेशा साथ में खाते हैं. That's why यहाँ पर is है. Next, there is eggs and bacon in the plate. So eggs अकेले नहीं खाते हैं, उसके साथ bacon होता है. That's why यहाँ पर is आया. When a plural number applies to distances, weights, heights or amount of money and represents a single figure of or quantity, it is considered as a singular and takes a singular verb. कब, जबकि बात हो डिस्टेंस, वेट, हाइट और अमाउंट्स ऑफ मनी. वेट, हाइट, अमाउंट्स ऑफ मनी की बात हो तब वर्ब सिंगुलर ही आएगा. 1000 pounds, 1000 pounds, pounds POUNDS लिख के आप आर मत लिखना, डियर ऑल प्लीज. सो 1000 pounds is a great amount. 10 miles is not a great distance in their days of rapid travel. So not R, it's a miles. Miles, distance, height, weight और रुपीज़ में कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं आता है, सिंगुलर. इफ द टाइटल ऑफ अ लिटरेरी वर्क और द सेम और द नेम ऑफ अ हाउस और अ होटल is a plural, then it is treated as a simple and it is only one title or one building. So look at here, around the world in 80 days was written by Jules Verne. Okay, around the world in 80 days. So 80 days की बात है और around the world की बात है, इसलिए यहाँ पर was आया. The four squares is situated in the high street. So four squares की बात है, उसमें भी singular is ही आएगा. This is the self practice है dear all, and ब्रैकेट्स में आपके वर्ब भी दिए हुए हैं. सो डू सेल्फ प्रैक्टिस एंड सबमिट मी गूगल क्लासरूम. राइट योर एनरोलमेंट नंबर, नेम, ब्रांच, सबमिशन. और आज की डेट है 20 अप्रैल 2021. सो आई नीड इट and I will share you a message also. So thank you very much dear all.